کامیابی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی لائن میں آ جائیں. ہم آپ کے دباؤ کی وجہ سے اپنا موقف نہیں چینج کریں گے. یہ کڑوا گھونٹ جو ہم نے پیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے کراچی کی ترقی. تو لوگوں کی ڈیمانڈ تو ایسی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ فوری طور پر صوبہ سندھ میں گورنر رول لگا دیا جائے. کسی بھی حالت میں سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. جس کے دماغ میں یہ فطور ہے بھوسا ہے وہ نکال دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، آپ نے ملاحظہ کیا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کے دماغ میں فطور ہے تو نکال دے اور میں جو ہے اپنے اختیارات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. دوسری طرف خرم شیر زمان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑے آپشن ہیں، گورنر راج کی بھی بات ہوتی ہے. آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان تمام باتوں کی تردید کی ہے کہ کراچی کے حوالے سے نہ تو آرٹیکل 149 کی کوئی تجویز زیر غور ہے اور نہ ہی جو سندھ میں گورنر راج کے حوالے سے کوئی آپشن جو ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے. معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک نامور صحافی، معروف اینکر محترم جناب کامران خان صاحب نے 2 روز قبل ایک ویڈیو میسج جاری کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سینئر ترین فوجی افسران نے بٹھا کر ایک بڑا سیاسی اتحاد کرا دیا ہے اور اب یہ گٹھ جوڑ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد سے بیانات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا اور ایسے لوگ جنہیں نہ اس میٹنگ کی الف بے پتہ تھی، نہ یہ معلوم تھا کہ اس سے پہلے میٹنگ کہاں ہوئی ہے، نہ یہ معلوم تھا کہ پہلی میٹنگ میں کیا چیز طے پائی اور اس کے بعد جو فالو اپ میٹنگ تھی اس میں کیا طے پایا، اس کے بعد سے ایک بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جو آج تک جاری ہے. این کے ایم کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی زیر صدارت، جس میں میئر کراچی وسیم اختر صاحب نے یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ہے کہ آخر معاملہ ہے کیا، کیوں جو ہے وہ رائی کا جو ہے پہاڑ بنا دیا گیا ہے. کیا ایسی چیز ہو گئی، انہونی سی چیز ہو گئی کہ جس کے اوپر ایسا لگا کہ شاید جو ہے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. کچھ بھی مجھے جو میرے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل پوزیشن جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تینوں پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ ضرور ہوئی ہے اور ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ بھی وہاں پر اگر کوئی سیاسی شخصیت موجود تھی یا جس کے رابطے سے، تو وہ بھی ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. وہ شاید چند دنوں میں وہ بھی بات منظر عام پر آ جائے کہ انہیں کیوں بلایا گیا تھا اور وہ وہاں پر کس حیثیت میں موجود تھے. ساتھ ساتھ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اس میں جو میجر ڈسکشن تھی وہ کراچی میں نالوں کی صفائی کے حوالے سے تھی. اور جو این ڈی ایم ہے، گو کہ ایک براڈر اسپیکٹ میں بات ضرور ہوتی ہے چیزوں کے اوپر، لیکن جو مجھے ذرائع سے معلومات ہو رہی ہے، جتنے لوگوں سے ہم نے معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق این ڈی ایم اے نے جو اپنی انیشل فائنڈنگز دی ہیں نالوں کی صفائی کے حوالے سے، تو یہ بات ایک مرتبہ پھر سامنے آئی ہے کہ کراچی میں جب تک پولیٹیکل پارٹیز کا ساتھ نہیں ہوگا کوئی بھی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور این ڈی ایم اے کے حوالے سے بھی اسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اتنا بڑا نام اور اس کے پیچھے پاکستان کی فوج کا ایک برانڈ اور اس کو ہیڈ کرنے والے ایک لیفٹنٹ جنرل، اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ ناکامی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کس طریقے سے امیج خراب ہوگا این ڈی ایم اے کا. تو بہت ساری چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ جو 28 اگست کو بلدیاتی نظام ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد کراچی کے ایڈمنسٹریٹر اور اس کی جو دوسری چیزیں ہیں اس کے اوپر کیا پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی مشاورت کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر لے کے آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. سیاسی طوفان زیادہ ہے، سیاسی بیانات زیادہ ہیں، لیکن پریکٹیکل پوزیشن جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. ساتھ ساتھ آج آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب سعودی عرب تشریف لے گئے ہیں، وہاں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان ملاقاتوں کی کچھ تفصیلات آئی ہیں، کچھ تفصیلات اب سے کچھ دیر کے بعد جو آئی ایس پی آر ہے اس کی جانب سے باضابطہ طور پر جاری ہوں گی. لیکن انتہائی اہم نوعیت کا دورہ ہے اور پھر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا سعودی عرب نے جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اس کے اوپر کسی قسم کے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کیا معاملات ایک مرتبہ پھر عسکری قیادت کو ہی سنبھالنے ہیں. عسکری قیادت ملک کے داخلی محاذ پہ جو سیاسی چیلنجز ہیں، جو معاشی چیلنجز ہیں، جو دیگر چیلنجز ہیں اس کے اندر بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے اور اسی طریقے سے جو خارجی
सतह के ऊपर पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, वहां पे भी उनको अपना रोल प्ले करना पड़ रहा है। वजह क्या है? वजह फिर सवाल नाक़दीन ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस है या जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं उसकी डिलीवरी और गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से बार बार उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। बिलावल भुट्टो साहब आज गर्जे बर से एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी साहब की पेशी थी, अदालत ने उन्हें इस्तिस्ना नहीं दिया, वो अदालत में पेश हुए, बीमार भी लग रहे थे, और बिलावल भुट्टो साहब ने खासी सख्त बातें की है और उन्होंने कहा है कि हम पर दबाव डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि लाइन में आ जाएं, आप हमें सबको गिरफ्तार कर लें। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बावजूद भी हम 18वीं तरमीम और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हवाले से अपनी स्ट्रगल से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो खारजी महाज की डेवलपमेंट है, यही आज के हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट मोहतरम जनाब सेनेटर साबिर बलोच साहब, मुझे लाहौर से ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा जनाब शिदा फातिमा साहिबा, और मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, जो कि इस वक्त सेनेट में हैं, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले साबिर बलोच साहब, ये किसका दबाव है? ये कौन पीपल्स पार्टी को लाइन में लाने के लिए कोशिशें कर रहा है कि वो लाइन में लग जाए? ये कौन है जो पीपल्स पार्टी को चाहता है कि वो जो है वो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें? तो आखिर ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, नाम भी नहीं लेते हैं और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, ये क्या मामला है? देखो, मैं पता नहीं आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर दी कि यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो यानी जहाँ दबाव डाला जाता है और प्रेशर डाल दिया जाता है। अगर आपका मतलब जो आपने शुरू में जो फरमाया था कि इस कमेटी की बात जो आपने की थी कि कराची के लिए एक कमेटी बनाई गई है कि वो कमेटी जो है ना उसको एग्जीक्यूटिव पावर देंगे या जो कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये कमेटी बनाई किसने है। अच्छा, और ये कमेटी किसके कहने पे बनाई गई? कमेटी को एग्जीक्यूटिव पावर देना वो किसका काम है? ये क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है? क्या ये फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार में है? क्या ये खुद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियार में है? लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली कोई कमेटी नहीं बन सकती। लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली आप पावर सिंध गवर्नमेंट के या वजीर आला के वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ये फेडरल गवर्नमेंट हो या चाहे वो कोई और अदारा हो। अभी तक साबिर बलोच साहब, जिस वक्त तक आपसे मेरी बात हो रही है, कोई कमेटी नहीं है। ये मीडिया के ऊपर तो नाम भी चल गए हैं कि जी फला फला शामिल होगा, सिंध गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से। कोई कमेटी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसके ऊपर कोई बात भी नहीं हुई है। वो मैं कहता ना कि चाय की प्याली में तूफान बपा है गुज़िश्ता 72 घंटों से 48 घंटों से। नहीं भाई, कमेटी देखे ना, बात यह कि इवन चीफ मिनिस्टर साहब ने भी खुद कहा है कि जी कि हम पावर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे की बात नहीं है, वो नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि जो कमेटी बनी नहीं है, अगर नहीं बनी है तो दैट्स अ गुड थिंग, इसलिए कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना एक काम होगा अगर बन जाए तो। अच्छा, और उसमें ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, दुनिया ने देखा है कि जो नाम भी आ गए कि जी MQM के 3 लोग हैं और PTI के 3 लोग हैं और फलाना है और फलाना है। अच्छा, आप गवर्नर साहब के स्टेटमेंट देखे लग ऐसा रहा है कि जी कल ही को जनाब वो टेक ओवर कर रहे हैं और यहाँ गवर्नर राज लगेगा। अटॉर्नी जनरल साहब की बातें आपने वो भी कह रहे हैं कि जी के आइन के अंदर ये प्रोविजन है कि कोई इख्तियार यानी कुछ तब्दीली आएगी। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जो धमकी आमेज जो ना किरदार अदा किया जा रहा है, भाई ये जो है ये मेरी समझ में नहीं है कि ये क्यों इस तरह किया जा रहा है। या शायद ये सिंध गवर्नमेंट को डरा धमका के उसको कोई काम करने नहीं दे रहे उसको कि वो अपने चीजों पे अपने मसाइल पे फोकस करे। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतनी सी अर्ज करूंगा कि वजीर आला साहब हो, वजीर आजम हो, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या कोई अदारे का सरबराह हो, ये कमेटी नहीं बन सकती इसलिए कि आप आईनी लिहाज से पावर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। यू हैव टू ब्रिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर जाए अगर आप जरूरी ये करना चाहेंगे। जोर जबरदस्ती तो और चीज है, जोर जबरदस्ती पे माशाल्लाह भी लग सकता है। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर लूं, अगर
जो अदारे खुद कानून और आइन के ताबे हैं, तो वो किस तरह गैर आइनी और गैर कानूनी काम करेंगे? ठीक बात, अव्वल तो ये बात मैं आप ठीक बात। शिदा दूसरी फातिमा बात साहब, ये- जी साबिर साहब, कराची के अगर जो मसाइल हैं, कराची में अगर फर्ज कर लो यानी सफाई का मामला है, या कराची में यानी जो दूसरी चीजें हैं, तो देखिए कराची में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कराची में, यहाँ पे कराची एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लो है यानी दूसरे सूबों से लोगों का। अच्छा, और जहाँ जिसको जगह मिल जाती है वो वहाँ पे अपनी जो है एक कॉलोनी बना लेता है। तो मैं आपको जहाँ पर कर लूँ कि ये सारे मामला की बिगाड़ एमपीओ के जमाने से शुरू हुई थी। अच्छा, बहरहाल अब उस बात को छोड़ दें, लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर इन लोगों को बुला के इनके मशवरे से कोई काम कर ले, वो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मशवरा तो हर एक से लिया जा ठीक सकता है, ठीक, बिल्कुल ठीक तो है। ये वो कुलीग है, उनसे मशवरा ले सकता है, लेकिन वो अपने इख्तियारात, अपने कैबिनेट के इख्तियारात किस तरह, हाउ पॉसिबल, किस तरह किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो साबिर साहब, मैं जरा शिदा फातिमा साहिबा का पॉइंट ले लूं, आपसे जी। आपका डीएचए डिफरेंट हाउसिंग अथॉरिटी का जो है ना सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, आपका ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। यही बात है कि कंटोनमेंट बोर्ड, डीएचए, मुख्तलिफ इदारे जो है वो उनके अपने अपने स्टेक हैं, अपने अपने। लेकिन सबको बिठा के इनके जरिए काम करवाए, इनसे पूछे। ठीक साबिर साहब, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं शिदा साहिबा से पूछूं। शिदा साहिबा, पहली बात तो ये है कि ये सियासी जमातों को बिठाने की जरूरत क्यों पेश आती है, और क्या कराची के मामले में यही 3 स्टेक होल्डर्स हैं? 10 दिन के बाद तो खत्म हो जाएगा मामला, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या उस तरह की स्टेक होल्डर नहीं है कि कराची में जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बिठाएंगे, उनका इनपुट नहीं लेंगे और उनके कंसेंसस के साथ चीजें नहीं चलेंगे, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे? वो भी नहीं कर सकते। ठीक जी, शिदा साहब, वो भी नहीं कर सकते जी, सिर्फ मशवरे ले सकते, ठीक पावर डेलीगेट नहीं कर सकते। जी। शिदा साहब जी, बात यह है कि सिंध के अंदर एक सिंध हुकूमत जो है वो कायम मकाम है। सिंध के अंदर, कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। अब जब एक सिस्टम चल रहा है तो ये मेरी जितनी इंफॉर्मेशन है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जब इन प्लेस है, एक गवर्नमेंट जब इन प्लेस है, तो ये इकट्ठे बिठाना और करना, ये चीजें जो हैं इन गुड फेथ बिल्कुल हो सकती हैं, शायद की जा सकती हैं, मगर इनकी आईनी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। ठीक। और ये के बिठाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मेरे ख्याल से तो अगर आप जो सिंध है या जो कराची है, और कराची जो है वो सिंध से अलग नहीं है, तो उस पर हमें अलग से भी नहीं फोकस करना चाहिए। सिंध एक हमारा सूबा है, कराची उसका जो है वो कैपिटल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाहौर पंजाब का कैपिटल है। बिल्कुल कराची के मसाइल ज्यादा जरूर हैं, लेकिन बात यह है कि पूरे सिंध के अंदर एक हुकूमत है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। उसके बाद वहां पे लोकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर उस सिस्टम को इफेक्टिवली चलने दिया जाए तो मसले मसाइल हल हो सकते हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बेहतर कोई मसलों का हल नहीं जानता, ना निकाल सकता है। सही। तो उस सिंध के जो हुकूमत है, मेरे ख्याल से जी, मेरी जाती ओपिनियन यही होगी, और मेरी यही ओपिनियन बलोचिस्तान के लिए भी होगी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी होगी, और पंजाब के लिए भी होगी, जीबी के लिए भी होगी। अपनी अपनी हुकूमतों को लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को काम करने दिया जाए और उनके मामलात में दखल अंदाजी ना की जाए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या अपडेट है आपके पास कि इस मीटिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और उसके बाद जो गुज़िश्ता 24 घंटों से 48 घंटों से एक सियासी तूफान मचा हुआ है, ये तो सारी चीज़ें हौश पौश हो गई हैं, वापस पॉइंट जीरो पे आके खड़ी हो गई हैं। ये प्री मैच्योर डिस्क्लोजर हो गया, जिन लोगों को पता नहीं था उन्होंने कमेंट करने शुरू कर दिए, ये हुआ क्या है? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि एक एफर्ट थी प्रधानमंत्री की जानिब से, एक ओवरचर था जिसमें ये कहा कि यहाँ के मसाइल अच्छे नहीं हैं और सूरत हाल ज़मीनी जो है वो दिखाती है कि लोगों की कुछ सर्विस डिलीवरी नहीं मिल रही, और ब्लेम गेम की कोई बात नहीं हो रही थी इसके अंदर। इससे कि ब्लेम गेम तो सारी दुनिया को नजर आता है कि ब्लेम कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसमें ये कहा गया था कि आए मिलकर काम करते हैं, लेट ऑल द स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आए।
और काम करते हैं कंसेंसस बिल्डिंग के साथ करें। कहीं अथॉरिटी चेंज करने की बात नहीं की गई। ये नहीं कहा गया कि वजीर आला को हटा दिया जाए, गवर्नर रूल लाया जाए, कौन से आइन के तहत किया जाए। एक मशावरती अमल था और ऑब्वियसली वो मशावरती अमल जो है उसको रिकॉग्नाइज करना था चीफ मिनिस्टर साहब को, उनकी कैबिनेट के अराकीन को। वो ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ना हो। हमारे पास जो एज फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आईनी है, हम एक्सप्लोर करेंगे। ये तो बड़ी वाजिब चीज है कि आज फिरदौस साहब उन्होंने कह दिया किसी के दिमाग में फतूर है तो वो निकाल दे, मैं अपने कोई आईनी इख्तियारात किसी से शेयर नहीं करूंगा। अरे हमें तो ये जिसके दिमाग में ये फतूर है कि वो बच भी जाएगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो भी अपना फतूर निकाल दे। इससे कि जो चोर और लुटेरे होते हैं वो कभी ना कभी जरूर पकड़े जाते हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए कि जेआईटी में उनके साथ क्या हशर इंशाल्लाह होगा। जिसने चोरी की है उसके साथ वो हशर होगा, या वो इनोसेंट साबित हो, वरना ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी नहीं रुकेगा। ये भी उनको भी ये फतूर, जो उनके दिमाग में ये फतूर है कि कराची के अवाम उनको बख्श देंगे इस सलूक के बाद, ये फतूर भी दिमाग से निकाल लेना चाहिए। अभी उन्हीं ने लोगों का गुस्सा नहीं देखा, वो फतूर भी अपने दिमाग से निकालने वो। तो फिरदौस साहब आप कोई असद उमर साहब ने या अली जैदी साहब ने अपडेट किया आपको मीटिंग के बारे में? मुहासरा करेंगे ना, जब सीएम हाउस का मुहासरा करेंगे जैसे लेबनान में हुआ था। लेबनान में तो आबादी कुछ नहीं है, ये 2 करोड़ का शहर है जिसका बेड़ा गर्क करके रखा है, जिसको पानी से महरूम करके रखा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, जिसमें पूरी सीवरेज जो खुले समंदर में डाल दी जाती है, जिसकी कोई कल सीधी नहीं छोड़ी है। 12 साल का जुल्म का हिसाब लेने जब अवाम इनका दरवाजा खटखटाएगी ना, उस दिन मैं पूछूंगा, इनको सारे फतूर याद आ जाएंगे। ठीक। साबिर बलोच साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते हैं जिस दिन 2 करोड़ के शहर के लोगों ने मुहासरा किया सीएम हाउस में, तो सबके ज़हन में जो फतूर है वो निकल जाएंगे। देखिए, अब आप खुद जरा अंदाजा कर लें कि ये वही बातें कर रहे हैं कि जो एक जमाने में एमक्यूएम किया करता था। ये समझते हैं कि शायद आप जो है ना के तहरीक इंसाफ को एमक्यूएम का नेमल बदल जो है ना वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब उनका जो असर हुआ, इनका तो असर तो खैर ये तो इनकी बात उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, ये इतने लायक भी नहीं है, लेकिन ये इसकी बातें किसी सियासतदान को जेब नहीं देती मेरे भाई। देखो, अब आप मेरे भाई जिस पोस्ट पे बैठे हुए, जहाँ बैठे हुए एक इलेक्टेड मेंबर है, तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है सिंध असेंबली में फिरदौस शमीम नकवी साहब। और तो आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी मैं पावर्स डेलीगेट नहीं करूंगा, वो तो बात नहीं है, बात कर नहीं सकते। होगा आप प्रॉविंस के एक गवर्नमेंट के साथ आप एक दूसरी हुकूमत किस तरह बना सकते हैं, गवर्नमेंट आप किस तरह बना सकते हैं? अच्छा, ये मशवरा किसने किया है? ये फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है या सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है या किसी और जो है ताकतवर तरीके से हुआ है? जहां से हुआ है वो सब आईनी, मैंने अर्ज किया कि आईनी जो है ना वो फोरम्स है और वो नहीं कर सकते इसको, गैर आईनी काम नहीं हो सकता। ये कमेटी नहीं बनेगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट या इमरान खान साहब जो है ना उसको चाहिए कि वो अपने लिकर जो है उनकी बातें न माने, उनकी बातें न सुने, पीपल पार्टी के हुकूमत की वजह से यहाँ पर या सिंध में या पाकिस्तान में या कराची में कहीं पर भी अगर लेबनान जैसी सूरत जिस तरह मेरे दोस्त फरमान रहे, वो पीपल पार्टी की वजह से नहीं आएगी, वो आपके वज़ीर-ए-आज़म और आपके पार्टी के नालायकी और उनकी जो है ना वो क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल इट, कि जो वो आकिबत अंदेशी की वजह से अगर होगा तो वो होगा। ठीक साहब, फिरदौस साहब जरा सा अगर इस पे मुख्तसर कमेंट कर दें साबिर बलोच साहब की बात पे, तो फिर मैं चीज़ दूसरे सूबे अपना टेन्योर पूरा करें। अगर बात कल को जो है ना अगर लोगों ने फैसला करना है तो लोग इलेक्शन में फैसला कर लेंगे। ये तो दुनिया का है, जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का। और अब आप कह रहे हैं कि जी अभी से आपको लेबनान ठीक, बिल्कुल ठीक। फिरदौस साहब वो कहते हैं सीएम या किसी के पास ये पावर ही नहीं है, अगर किसी ने कमिटमेंट भी की है तो गलत कमिटमेंट की है, लीगली ये मुमकिनात में शामिल नहीं है जो बातें हो रही हैं। दे नहीं सकता जी। ठीक साहब, जी फिरदौस साहब, ये पावर वजीर
साबिर साहब जवाब ले लें जरा फिरदौस साहब से। साबिर साहब पावर्स देने के ठीक जी, फिरदौस साहब। पहले लफ्ज फतूर, दिमागी फतूर का इस्तेमाल किया जिसने चीफ मिनिस्टर ने, ठीक, वो तो हुआ पार्लिमानी, वो नहीं हुई एमक्यूएम वाली बात, वो नहीं हुई धौस और डिक्टेटर वाली बात, वो तो एन पार्लिमानी अल्फाज है, एक दानिशमंद इंसान का अल्फाज है, वो जो चाहता है कि सिंध तरक्की हो जाए, उसको अपने अल्फाज के चुनाव के अंदर जो उसने, अगर वही अल्फाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर के उनके ऊपर रख के बयान कर दे तो वो फौरन जो है वो तो हो जाता है गलत। ठीक। अच्छा जी, लेबनान में हुआ क्या है? अगर इनमें अखबारात नहीं पढ़ते तो मैं इनको बता देता हूँ। लेबनान में हुआ ये धमाका हो गया, धमाके के बाद लोगों ने उस करप्ट गवर्नमेंट का मुहासरा कर लिया। क्या उनके ऊपर चार्ज है? करप्शन का। और उनके वजीरों ने और उनकी पार्लियामेंट के लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए उस गवर्नमेंट से बरात के लिए। अगर मैंने कोई गैर पार्लिमानी मिसाल दी है, वहाँ जमहूरियत थी, जैसी भी थी, वो भी कहते हैं हम बड़ी खिदमत कर रहे थे। ठीक, फिरदौस साहब नहीं, सवाल मेरा ये था कि वो कहते हैं कि ये सीएम के पास ये पावर नहीं है कि वो पावर डेलीगेट कर दे, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मुमकिन नहीं है जिस किस्म की कमिटमेंट की बातें हो रही हैं। यकीन रखता हूँ, मैं तो सिर्फ तारीख का एक स्टूडेंट हूँ, जो पढ़ता हूँ, जो देखता हूँ, वो बयान करता हूँ। अच्छा, ठीक। अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए वो फिरदौस नकवी के नहीं थे, वो एक ना आकबत अंदेश चीफ मिनिस्टर के थे, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिल्लत का सामना करना पड़ा जिसकी हुकूमत को, ठीक, जिसने इस बारिशों में नदामत देखनी पड़ी कि बारिशें जो जुलाई में आती हैं उसकी सफाई वो जुलाई के महीने में शुरू करते हैं। अप्रैल और मई का महीना तो आता ही नहीं है उनके साल में। ठीक, ठीक फिरदौस साहब, मैं जो जिनको ये नहीं पता कि बारिश कब आती है, जिनके लीडर को ये तो पता है ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, उसको ये नहीं पता कि बारिश होती कब है। कमाल की बात है ना। ठीक, ठीक फिरदौस साहब। शिदर साहब, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद जो करप्शन के एहतिसाब की बात की है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, और आज बिलावल साहब ने जो कोर्ट में बातें की हैं कि ये दबाव डाला जा रहा है, और इशारा यही है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है कि ये एज ए टूल इस्तेमाल हो रहा है प्रेशराइज करने के लिए, कोई पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए। इसके ऊपर आपसे मैं जवाब चाहूंगा वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, साबिर बलोच साहब, शिदा फातिमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिदा साहबा, फिरदौस साहब ने कहा था कि ये वो वक्त दूर नहीं है जब लोग एहतिसाब करेंगे, उसी तरीके से घेराव करेंगे जिस तरीके से लेबनान के अंदर हुआ। ये करप्शन की बातें एक तरफ है, सदा भी बहुत जोर से सुनाई देती है। उसके बाद जो आज बिलावल साहब कह रहे थे, उनका एक मकसद ये था कि जी प्रेशराइज किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल बार्गेनिंग। मामला है क्या? ये पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून की भी इसी तरीके की चीजें कि जी हमें जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इसका नतीजा क्या हासिल करना चाहती है गवर्नमेंट अगर आप पे प्रेशर डाल के, या पीपल्स पार्टी पे? वो तो हुकूमत में बैठे हुए। देखें डायरेक्टर साहब, ऐसा है कि ये अपनी यकीनन कंटेनर की स्पीच पे वापस सारे उसको रेफर करते हैं बार बार। मैं भी इन्हीं की कंटेनर की स्पीचेस में से कुछ एक्सर्प्ट्स अगर स्निपेट्स आपसे शेयर करूं तो कहा जाता था कि जब हुक्मरान करप्ट होते हैं तो महंगाई होती है, हुक्मरान करप्ट होते हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है, हुक्मरान करप्ट होते हैं तो डॉलर महंगा होता है। तो एक पूरी फहरिस्त थी कि हुक्मरान करप्ट होते हैं तो मुल्क की क्या शक्ल निकलती है। अब जब हम इसका मुआवजा करते हैं 2013 से और 18 तक का और 18 से 20 तक का, हम इनको 5 साल भी 2 साल आप देखें जी, तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आटा है तो 100% महंगा हो चुका है, हमारे टाइम पे उसकी कांस्टेंट कीमत रही। चीनी है तो 100% महंगी हो चुकी है, हमारे टाइम पे 53 रुपए पे हम आए थे और 52 रुपए पे छोड़ के गए थे, आज 100 रुपए का किलो है। आप फूड इन्फ्लेशन देख लें जी, अफराते ज़र चाहे खाने की शायद खुदो नोश में देख लें या ओवरऑल देख लें, आप बिजली की कीमतें देख लें, आप गैस की कीमतें देख लें, आप उठा लें कोई शय
जो शख्स गरीब आदमी 3 वक्त की रोटी अपने बच्चों को पूरा खाना खिला रहा था, आज चाय भी पिलाने के काबिल नहीं रहा। अब बात ये है कि अब लोग क्यों बाहर निकलेंगे? लोग बिल्कुल निकलेंगे और लोग एहतसाब भी करेंगे। अब ये कर क्या रहे हैं कि इन्होंने 6-7 साल लोगों से जो यही इसी किस्म के झूठ बोले अपने कंटेनरों पे खड़े होके कि 1000 अरब बाहर जाता है, हम अगले दिन आके मुंह पे मारेंगे। इनके FBR का चेयरमैन कहता है जी कोई यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, 85% पैसे जो हैं वो लीगल चैनल से जाते हैं, बाकी इतने पैसे हैं वो इन चैनल, उन्होंने सारा दे दिया। अब इसमें से 2 या 3% मनी लॉन्ड्रिंग की। तो ये सारे जो झूठ बोले गए, एग्जैजरेशन की गई, उस कंटेनर पे खड़े होकर लोगों की तज़हीक की गई, हमारी सकाफत की तज़हीक की गई, हमारे सीनियर मेंबरान की तज़हीक, पार्लियामेंट की तज़हीक की गई, अटैक किया गया, वो तमाम चीज़ें क्या इनका जो उन्होंने एक शर क्रिएट किया था वो अकाउंटेबिलिटी और करप्शन का किया था। अब उसको उसके अलावा उस झूठे फार्स को बचाने के अलावा इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं। 10,000 अरब इन्होंने कर्जा ले लिया, 11,000 अरब ले चुके हैं, हमने 5 सालों में 10,000 लिया था, उससे आज तक एक ईंट ये लगा नहीं सके। कोई प्रोजेक्ट दिखाने को नहीं है। 7 साल में KPK में एक अस्पताल नहीं बना, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी। 10 साल से पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनने की कोशिश कर रहा है, नहीं बन सका। पिछले 5 साल के अंदर जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, पूरा KPK हमारे भाई हैं, उधर आते हैं इलाज करने। तो जब इतनी खोखले हो आप अंदर से और बाहर से आपने एक अपना नैरेटिव जो है उससे सिर्फ उसके अलावा आपके पास कोई फेस सेविंग ना रहे, अब आप ये तो एक होगी कि फेस सेविंग से हमें क्यों अटैक करना चाह रहे हैं और ये जो एहतसाब के नाम पे इन्होंने अपना गठजोड़ किया हुआ है नैब के साथ, उसके ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी इसकी ये है कि इनकी अपनी हुकूमत के लोग क्या कर रहे हैं। ये जब से आए हैं पहला स्कैंडल निकला दवाइयों का, 300% दवाइयां बढ़ी, कभी वापस सस्ती नहीं हुई। फिर निकल आया स्कैंडल पोलियो की कैंपेन में। अल्लाह ताला मुझे माफ करे कि इस हुकूमत ने पोलियो जैसे मर्ज के अंदर करप्शन नहीं छोड़ी, वो पोलियो पंजाब में आज वापस आ गया। फिर इनका निकल आया आटे का स्कैंडल, फिर इनका निकल आया चीनी का स्कैंडल, फिर इनका निकल आया BRT और मालम जब्बा वाले तो पहले से हैं, अभी हाल ही में आपने देखा पेट्रोल का स्कैंडल निकल आया। तो एक लंबी फहरिस्त जारी हो गई अपनी करप्शन की। अब उस करप्शन को कैसे छुपाएं? एक तरफ तो फेस सेविंग करनी है एंटी करप्शन के नारे की, आपका कहना यह है कि वो जो अपने पुराने माजी के दावे थे वो और फिर अपनी जो परफॉर्मेंस है, उन दोनों चीजों को पीछे, परफॉर्मेंस और तीसरी अपनी करप्शन, ठीक, लैक ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम करप्शन और झूठे जो वादे किए थे। मैं फिरदौस साहब से जवाब लेता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि साबिर साहब इसमें ऐड कर दें। जो बिलावल साहब कह रहे थे कि जी दबाव है 18वीं तरमीम और जमहूरियत और 1973 का आइन, ये मामला क्या है? देखिए तारिक भाई, एक मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो जितनी भी सियासी जमातें होती हैं मुल्क के अंदर, न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह, उनका अपना एक मैनिफेस्टो होती है। वो अवाम को, पब्लिक को एक प्रोग्राम देते हैं कि भाई गवर्नमेंट में आने के बाद हम ये चीजें करेंगे। पाकिस्तान में ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी की जो बात है, वो सिवाय पीपल्स पार्टी के ये क्रेडिट किसी और जमात को बिल्कुल ही नहीं जा सकता, चाहे वो कोई आबियत का दौर हो या चाहे कोई सिविलियन यानी दौर हो। आप जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने से देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के मफादात में उसने जो पॉलिसी दी, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एटमी की ताकत बनाया, उसने नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी की, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द पार्टी। वो एक और डिबेट है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट किया। अभी मामला क्या है साबिर साहब, अभी इन दिनों मामला क्या है, अभी प्रेशर क्या है कि पीपल्स पार्टी से ये चाहते? मेरी याद सुने, मैं इसी पे एक मिनट के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा बलूचिस्तान में जो सरदारी निजाम का खात्मा था, वो उसको इम्प्लीमेंट कराया। अच्छा, अब बात यह है कि देखो कट शॉट मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि चेयरमैन बिलावल साहब ने जो आज बात की है, उस बात को वो बड़ी गहरी बात है, वो बड़ी सियासी बात है, और वो उस बात को आप सोचें, आप उस बात को समझें। वो इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब जब सदर थे, तो जरदारी साहब ने इस बात को महसूस किया था। हम और आप सब जानते थे कि पाकिस्तान किस वजह से चला गया, पाकिस्तान क्यों टूट गया। पाकिस्तान इसलिए टूटा कि पाकिस्तान के एक हिस्से ने, और इस आज का जो पाकिस्तान है उसमें जो इलाके थे, जो सूबे थे, वो अपने राइट्स मांगते थे। वो 1 यूनिट के खिलाफ लोगों ने अच्छा खासा जो है ना कैंपेन चलाया। 1 यूनिट के खिलाफ 3 सूबे थे, 4 सूबे थे, इवन पंजाब के अंदर
بھی اس کے خلاف جو ہے نا وہ ایک پولرائزیشن تھی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ون یونٹ ٹوٹا، جب یہاں پر صوبوں کو جو ہے نا نئی طریقے سے تنقید دی گئی، تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا اختیارات کا. اچھا بیچ میں کتنے یعنی ملٹری گورنمنٹ آئے اور کتنے سویلین گورنمنٹ آئے، لیکن کوئی اس چیز کو، اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا. اچھا دوسری آپ کے فائنانس کا جو معاملہ تھا اس کو بھی کوئی حل نہیں کر سکا. پنجاب سے بلوچستان فرنٹیئر یہ سب جو ہے نا، یعنی آپ صابر صاحب یعنی یہ ہے کہ صوبائی اختیارات اور خود مختاری کے لیے 18ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کے ذریعے کچھ طاقتوں کی ہیجمنی ختم ہو گئی. صوبوں کو آپ نے خود مختار کر دیا. صوبوں کو کہا کہ جن کے ہیلتھ، ایجوکیشن جتنے بھی ادارے ہیں آپ اپنا خود چلائیں. اچھا ایک قسم کی ہارمنی پیدا کریں فیڈرل گورنمنٹ. تو وہ ہیجمنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیجمنی دوبارہ قائم کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے؟ وقت میرے پاس کم ہے صابر صاحب. میں فردوس صاحب کا فردوس صاحب یہ شہزاد صاحبہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. وہ کہتی ہیں کہ جی یہ ایک آپ کے دعوے، دوسری آپ کی گورننس اور تیسری آپ کی کرپشن کے ایشوز، یہ 3 پوائنٹ ایسے ہیں جن کو ڈھانپنے کے لیے آپ جو ہے اپوزیشن کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اچھا پہلی چیز تو دیکھ میں مشہور ہوں صاحب موصوف کر کے انہوں نے ایک ایگزامپل سامنے لے آئے، اسی سے ڈسکس کر دونوں کے جواب بھی دیتا ہوں. انہوں نے کریشن آف بنگلہ دیش کا ذکر کیا. جی بنگلہ دیش کیوں بنا اس کی وجوہات میں تو بعد میں جاتے ہیں. بنگلہ دیش پاکستان جب بنا پاکستان سے زیادہ غریب تھا، جو رہ گیا تھا پاکستان، اور کیوں بنا اس کی بات بھی بعد میں کریں گے. لیکن غربت میں پاکستان سے زیادہ غریب ملک تھا، اور آج پاکستان سے زیادہ امیر ملک ہے فی کس آمدنی کے لحاظ سے بھی، ایکسپورٹس کے لحاظ سے بھی. بتائیے دونوں ملکوں میں اب فرق کیا آ گیا؟ یہاں چوروں کی حکومت تھی، یہاں لٹیروں کی حکومت تھی، وہاں مقابلتاً دیانتدار لوگوں کی حکومت تھی. یہی فرق ہے. اچھا جی کس نے کہا ہنس لو بیوی، ابھی تو تمہاری ہنسی وہ قطری ختم ہی نکلے گی پوری نا، اس میں کون سی بات ہے. جو ایماندار دیانتدار لوگ ہوتے ہیں ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا 4 دفعہ قوم کے سامنے آ کے تقریر کرتے ہیں. یہ ہے وہ ذرائع، اور جب کورٹ میں جاتا ہے تو وہ ذرائع کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے ایک قطری ختم. وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا کبھی ملک سے باہر جانے کا. اچھا فردوس صاحب یہ تو سب پرانی باتیں ہو گئی نا. ابھی کی اب کیا صورتحال ہے؟ یہ لوگ اب 2 سال بعد تو اب آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا. طارق صاحب اب آپ سنیے، آخری جھوٹ، ہمارے پلیٹلیٹ بہت کم ہو گئے. آج کل وہ پلیٹیں گن رہے ہیں. روز آتا تھا آدھے گھنٹے میں بلیٹن، کدھر گیا وہ آدھے گھنٹہ والا بلیٹن؟ وہ الدین کا چراغ ہمیں بھی دے دے جس سے پلیٹلیٹ لندن پہنچتے ہی صحیح ہو جاتے. وہ چراغ ہمیں ملے گا، ہم معیشت صحیح کر دیں گے جو انہوں نے 70 سال بگاڑی ہے. یہ معیشت کو صحیح کرنا، یہ نظام کو درست کرنا، 70 سال کا بگاڑ 2 سال میں درست کرنا، ہم نے صحیح راستے پہ قوم کو لگا تو دیا ہے. ابھی دیکھ لیجیے کووڈ کا مسئلہ، اب ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، یہ لوگ سبھی چیخ رہے تھے کہ غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. اسی طریقے سے جو ہمارا احساس پروگرام ہے اب ساری دنیا فالو کر رہی ہے، اس کو ذرا ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کر لے اسی ایک ایشو کی ڈیلنگ کے اوپر. ہم تو نااہل ہیں، ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے. یہ تو بڑے قابل ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے. سندھ کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ مریض جو ہے صحت یاب سندھ میں ہوئے. ارے یہ تو جواب دے دو، سب سے زیادہ مریض ہوئے کیوں سندھ میں؟ تم نے تو لاک ڈاؤن لگایا تھا کمپلیٹ، اس میں پھر بھاگ جاتے ہیں کہ معیشت کو کتنا تباہ کیا تم نے. پاکستان کی معیشت جتنی کوئکلی ریباؤنڈ کر رہی ہے اس وقت دنیا میں کسی اور ملک کی نہیں کی ہے. ایگزامپل ورلڈ بینک بھی کہتا ہے. تو یعنی فردوس صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے آرگومنٹ ہیں وہ 2 سال کی پرفارمنس سے ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا. جو ماضی کی جتنی غلطیاں اس کے لیے ٹائم چاہیے. خود گر جائیں گے. تم تو کہو کہ کرتے رہو حکومت اسی طرح. پریشانی کی کیا بات ہے؟ جی پریشانی تو ان کو ہوتی ہے جن کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری چوری پکڑی جائے گی. یہ تو وہ حکومت ہے
जो इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी की रिपोर्ट भी शाया करती है, चाहे वो बीआरटी की हो। इंक्वायरी इन्होंने नहीं की थी बीआरटी की, खुद हुकूमत ने की थी। चीनी की हो वो भी खुद हुकूमत ने की थी, ठीक फिरदौस साहब की हो वो भी खुद हुकूमत ने की थी, हवाई जहाज तैयारा गिरने की हो वो भी हुकूमत ने की, और सारी पब्लिक की। इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। तुम्हारे जमाने की डॉन लीक्स किधर गई, मेमो गेट किधर गया, इनसे पूछ लो। अब्दुल कमीशन रिपोर्ट की थी। ठीक फिरदौस साहब, वक्त खत्म हो रहा है, मैं शिजा साहबा से जवाब ले लूं इसके ऊपर। जी शिजा साहब, आप इसका कमेंट कर दें, फिर प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे। तो मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की उम्र का तकाजा करते हुए उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि वो भी अपनी बाकी कमजोर पार्टी की तरह जो है किसी की सेहत का मजाक उड़ाएंगे। दूसरी बात पे आप आ जाएं कि हमारी करप्शन, भाई अपने ना नंबर्स बोलेंगे ना करप्शन की बात करेंगे। अब मैंने तो इनके लीडर की बात की है जी। इनका लीडर कहता था जब करप्ट हुकूमत होती है तो महंगाई होती है। आज महंगाई है, आप बताएं क्यों है? 100% चीजों की कीमतें बढ़ चुकी हैं 2 सालों के अंदर, उसका तो जवाब नहीं देंगे। इनका लीडर कहता था करप्शन होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। कोरोना से पहले 40 लाख बंदा अपनी नौकरी गंवा चुका था। कोरोना से पहले इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव थी। कोरोना से पहले जीडीपी ग्रोथ -0.4। कहते हैं हमें टाइम दें, शिजा साहब कहते हैं हमें टाइम दें, 2 साल में हम क्या कर सकते हैं? बांग्लादेश से मुआवजा कर लें जी। बांग्लादेश से टाइम देने का ये नहीं मतलब होता आप दबो दें। टाइम ये होता है कि आप उसको बेहतर जरा आराम से करेंगे। आपने 5.8 जीडीपी को -0.4 पे कर दिया, आप अच्छा टाइम मांग रहे हैं, खुदा का खौफ करें। बांग्लादेश 2018 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ थी, 2020 में 8.5% जीडीपी ग्रोथ है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 5.8% थी 2018 में, आज -0.4 है। और ये कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं? आईएमएफ जो है पोस्ट कोविड पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 1% पे प्रिडिक्ट कर रहा है, और आपके साथ इंडिया बांग्लादेश की जो है वो 4 से 5% के ऊपर प्रिडिक्ट कर रहा है। तो खुदारा लोगों के साथ झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दें। अब आपकी हुकूमत है, आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके सामने आइए। आप 72 साल की बात करते हैं, आप 72 साल में ये बात नहीं करते हुकूमत किसकी थी, वो आपके मुंह से नहीं निकलेगा। बांग्लादेश और अगर आपने पाकिस्तान की गवर्नेंस का कंपैरिजन करना है तो नेक नियति से, साफ दिली से और दिलेरी से करें। ये आप इस तरह की दूसरों के ऊपर सिविलियन अपोजिशन है उनके ऊपर इल्जाम लगा लगा के ना करें, उनके पीछे ना छुपें, पूरी तरह बात करें। फिर तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं पनपी। जब आपने उसको देखा कि उसने 10 साल अपने निकाले तो हमारा जीडीपी बिल्कुल बढ़ा, 2% से 6% के ऊपर आया, और हमारी बाकी भी तमाम चीजें आप जिस मर्जी ग्रोथ फिगर को उठा के देख लें वो बेहतर हुई। और इनकी 2 साला नाकाम नाअहल एक पपिटियर फैशिस्ट और करप्ट हुकूमत ने इस मुल्क का जो कोरोना से पहले हाल किया था, इनको अगर और टाइम दिया तो हमें सिर्फ ये डर है अल्लाह ना करे कि ये ना हो कि हम वापस जो है उसको रिकवर ना कर सकें। और आप वक्त मेरा खत्म हो रहा है, मैं साबिर साहब से जरा फाइनल कमेंट ले लूं जी। आखिरी बात, हमारे कर्तरी खतों की आप बात करते हैं, हमारे वजीर आजम को आपने एक इकामे के ऊपर जो है वो किया, उसके बाद से आज तक आप एक केस के अंदर करप्शन नहीं साबित कर सके। तमाम इदारे, तमाम कागजात, तमाम मिनिस्ट्रियां, तमाम रिपोर्टें आपके पास हैं, एक बंदे को आप करप्शन में कन्विक्ट नहीं कर सके। और अपनी दफा फॉरेन फंडिंग में आप जो है वो स्टेज के पीछे छुपते हैं, बीआरटी में आप स्टेज के पीछे छुपते हैं, मालम जब्बा में आप स्टेज के पीछे छुपते हैं। आप जो इंक्वायरीज कराते हैं और रिपोर्ट देते हैं अपने करप्ट वजीर आजम को छुपाने के लिए करते हैं। साबिर साहब लास्ट कमेंट है, प्रोग्राम टाइम ज्यादा हो गया है जी। देखें, यानी आपने जो फरमाया कि ये कह रहे थे कि हमें 2 साल हो गया है, बुनियादी बात यह है कि आप इस चीज को देखें कि 1 साल हुआ या 2 साल हुआ, वो जो है ना क्या कोई बेहतरी की तरफ जा रही है क्या, या बेहतरी की तरफ जा रही है या डिटोरिएट हो रही है? अगर डिटोरिएशन है तो जाहिर है कि 3 साल के अंदर तो ये तो और मामला जो है बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। यही बात शिजा साहब ये है कि जी 5 साल का मैंडेट है, मगर परफॉर्म करने का मैंडेट है, डुबोने का मैंडेट नहीं है ये चीज। हेलो जी साबिर बलोच साहब, शिजा फातिमा साहब, आप फिरदौस शमीम नकवी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।